बोल केलं केलं जस्ट केलं. हाँ हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ. सब लोग आपका कैमरा चालू करेंगे. Let's start, everybody. Good afternoon. Let's begin with the prayer. Back straight. अपने अपने चश्मे स्पेक्टेकल्स निकाल दो. Sit straight. Hands in Gyan Mudra. Chin parallel to ground. Exhale करना है. Deep exhalation करेंगे. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. We'll start our class with 3 Omkar chanting, followed with the prayer. Inhale. Om. Inhale. Om. Inhale. Om. Om. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. Rub your palms, cup your eyes, slowly remove your palms, slowly, steadily, gently open your eyes. Good afternoon, everybody. आज गीता जी का हाई ब्लड प्रेशर का क्लास है.
उससे पहले हम आरंभ इंस्टीट्यूट का थोड़ा इंफॉर्मेशन जानेंगे। आरंभ इंस्टीट्यूट, आरंभ इंस्टीट्यूट is accredited by Yoga Certification Board YCB, Ministry of Ayush, Government of India. It is also an ISO certified institute for the international standard that specifies requirements for a quality management system QMS, and it is running as an educational wing of Arambha Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. We work for to enlighten the world, especially young aspirants, with quality education, training, and guidance in yoga teaching profession, and introduce them to real essence of yoga and benefits of introducing and applying yogic practices to their lifestyle, resulting in improved life balance of an individual, hence turning up a better society. थैंक यू। अब मैं गीता जी जो आज हमारा क्लास लेंगी उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। गीता वेलनकर is an graduation and masters from University of Pune. She is working as a swimming coach from last 22 years with various aquatic clubs, YCB level 2 under guidance of Arambha Institute and PPYG from Arambha. Thank you. I hand over my mic to Miss Geeta Velankar ji. Thank you. Thank you, Yugandhara ji. I welcome all of you. Namaste everyone. Myself Geeta. I welcome you all for today's workshop on MyBP. Firstly, I am very grateful and thankful to Arambha Yoga Institute and Sushma ma'am for giving me this opportunity. My all gratitudes towards my all the teachers, Rita ma'am, Balkrishna sir, Sanjeev sir, Ashwini ma'am, and Arambha Yoga's office team also. And to all of you for giving me your precious time. So let's begin with our topic today. In today's fast-paced lifestyle, most common health disorder today prevalent is a hypertension or high BP. This occurs when pressure inside your blood vessels is, I will just share my PPT. हमारा क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन रहेगा, लास्ट में रहेगा, और एक फीडबैक फॉर्म भी रहेगा जो आपको लास्ट में हमें भर के देना है। आप अगर आपका कैमरा चालू करोगे सब लोग तो अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन। Can you see the PPT? यस गीता जी। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हार्मनी विद इन, दैट इज हमारे अंदर का जो एक हार्मनी होता है, बट वो हार्मनी हम आजकल खो चुके हैं ड्यू टू हाई बीपी और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, राइट? सो क्यों होता है ऐसा? हमारा जो आज का टॉपिक है हाई बीपी, विच इज अ prevalent very common disorder in today's life. So this occurs when a pressure inside the blood vessel is higher than the normal expected values for the age and gender. बीपी का जो एक्सपेक्टेड काउंट होता है उससे ज्यादा अगर आपका काउंट आ रहा है तो वो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है। व्हाई इट हैपेंस? ब्लड प्रेशर इज हायर than normal due to increase in the amount of blood pumped by the heart and narrowing of arteries leading to increase in the resistance to flow. So now what yoga can offer you? Yoga, if adopted as a lifestyle, has a lot to offer for those suffering from this stress induced and psychosomatic
disease or disorder, and which is unfortunately a silent killer. So there are two types can be, मतलब ये इसे दो भागों में हम देख सकते हैं. First is primary, that is essential hypertension, और other one is secondary. अभी hypertension को diagnose कब करते हैं डॉक्टर? If it should be said that a person is facing the disorder of high BP, when high BP, आफ्टर ओनली हाई बीपी का आपका जो रीडिंग है वो बहुत बार डॉक्टर लेते हैं, सेवरल टाइम पे आपको बुला के आपका बीपी का रीडिंग लेते हैं. और अगर उसका उन सारे बीपी रीडिंग्स का एवरेज 140 एंड 90 के अगर अबव आ गया 2-3 बार लेके भी, तो ही आपको हाइपरटेंशन का डिसऑर्डर है ऐसा बोला जाता है. नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80. 120 is systolic and 80 is diastolic. Hypertension is a case of persistently अगर आपका 139/89 से ऊपर आ रहा है तो ही वो हाई बीपी कहलाता है. 120/81 to 139/89 is a case of pre-hypertensive. इसमें शायद आपको मतलब डॉक्टर कभी मेडिकेशन नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको अगर आप प्री हाइपरटेंसिव में हो तो भी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए जाते हैं. नाउ जाते हैं टाइप्स पे. प्राइमरी हाइपरटेंशन, व्हेन आपको बोला जाता है कि आपको हाइपरटेंशन का हाई बीपी का डिसऑर्डर है, तो इसके लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं उसमें जो प्राइमरी मतलब आपको बीपी का ही प्रॉब्लम है, सिर्फ बीपी का ही प्रॉब्लम है, तो वो हेरिडिटरी हो सकता है, स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, और मेनी ऑफ द केसेस में कॉमनली दिस इज अ मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है. लेकिन अनदर टाइप भी देखा जाता है विच इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन. दिस कैन बी ड्यू टू मतलब आपको कोई डिसीज पहले से है और उसके साथ में एज अ साइड इफेक्ट और एज अ साइड करके ये डिसीज भी आपके तरफ आया हुआ है. तो वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? किडनी डिसीज है, एड्रेनल ग्लैंड डिसीजेस है, ओबेसिटी है, आर्टेरियल वॉल नैरोइंग है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी वॉल ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, स्ट्रेस एंड पुअर लाइफस्टाइल. दीज कैन बी मेन रीजंस, एंड ड्यू टू दिस आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम उसके साथ में आता है. सो इन दिस केस दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी. सो व्हाट कैन बी सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन? कभी कभी ये सिम्टम्स सारे देखे जाते हैं, कभी कभी इसमें से मल्टीपल देखे जाते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं. लेकिन अगर आपको मतलब पता है कि हमें चेकिंग, एनुअल चेकिंग या ऐसे कुछ चेकिंग में आपको पता भी चल सकता है कि आपको हाइपरटेंशन है. most common symptoms are heavy head or dizziness, breathlessness, loss of sleep, insomnia, increased palpitation, increased tiredness, feeling of tightness in chest. These are commonly observed. Now what yoga can do for this ये situation जो आ जाता है हमारे लाइफ में, so what yoga can do? In the initial strategy while managing hypertension, में initial strategy करके डॉक्टर आपको या तो मेडिकेशन में डालेंगे या आपको बोलेंगे आप मेडिटेशन फॉलो करना शुरू करो. सो दोनों ही साथ में अगर आप करेंगे, मेडिटेशन आप योगा से सीख सकते हो, सो यू कैन डू मतलब आप दोनों के साथ में ही जाएंगे तो दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी. एटलीस्ट आपको मेडिकेशन डॉक्टर की तरफ से जब तक आपको बंद करना नहीं बोला जाता तब तक आपको बंद करना भी नहीं चाहिए, until at least your condition stabilizes and come to closer to 120/80, which is a normal count. So now next, for managing hypertension, lifestyle changes are the first step. इसमें अभी योगा हमें क्या बताता है इसमें? So योगा tells, और इन भगवत गीता बहुत अच्छे से बताया गया है कि how one can manage our lifestyle. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Yoga destroys all sorrows for him in whom the sleep, the waking, the food, the play, efforts in work are all yukta. Yukta means moderate.
हमें हमारा सब कुछ ही है वो मॉडरेट करना चाहिए। इसके लिए ये जो 4 पिलर्स बताए गए हैं, ये इस श्लोक में भगवत गीता में बोला गया है। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज आहार, वेरी इंपॉर्टेंट। आहार जो है वो योगिक डाइट या योगिक आहार जिसे बोलते हैं उसे मिताहार बोलते हैं योगा में। मिताहार मतलब क्या? सुस्निग्ध मधुराहारश्च चतुर्थाशो विवर्जिता पूज्यते शिव संप्रीते मिताहार से उच्यते। मतलब द फूड विच इज फ्रेश एंड हैज इट्स juices intact, has pleasant taste, sattvic, well cooked, with adequate fats and which is nourishing to your body. नाउ यहाँ पे पोर्शन कंट्रोल भी इसी इसी श्लोक में बताया गया है। मॉडरेट मतलब क्या? तो keep your stomach 1/4 empty. It signifies that 1/2 filled with food and 1/4 with water and rest for air. Eat after offering to Shiva. As a result of prasad, the body and mind will get strengthened. ये प्रसाद चढ़ाना, भोग चढ़ाना हमारे मतलब नेचर में ही होता है, लेकिन इसे हम इन मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसे भी ले सकते हैं कि आपका जब माइंडसेट अच्छा हो, आपका मेंटल कंडीशन जब अच्छा हो, तभी आपको खाना खाना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस से जा रहे हो, उसी टाइम आपको बहुत ज्यादा किसी मतलब चीज की चिंता हो रही है, या आप किसी क्वारल से अभी अभी आए हो, तो उस समय आपको फूड इंटेक करना अवॉइड करना चाहिए। इसे हम लाइफ मॉडर्न लाइफस्टाइल में ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर जो होता है वही आजकल हमारा सब फैमिली का साथ में होता है, और मोस्टली फैमिलीज क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। सो वी कैन अवॉइड दैट, और फैमिली के साथ में ही लेकिन विदाउट एनी गैजेट्स यू कैन ट्राई। सो दिस कैन बी मतलब इजीली फॉलोड। अगेन दिस आहार और मिताहार जो है वो सभी के लिए है, लेकिन हमारे हाई बीपी के केस में मेनी थिंग्स यू कैन फॉलो। सम ऑफ देम में बी पोर्शन कंट्रोल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हाई बीपी डायग्नोस होता है तो ओवरवेट भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो पोर्शन कंट्रोल इज बेटर, it will help you to reduce your weight also. Limit intake of sodium and fats. Sodium matlab salt. Why limited salt? Because salt retains water in our body and increases volume of blood, and in turn it increases our blood pressure also. Same with the fatty food and trans fats etc., which automatically मतलब वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज करता है और बीपी भी साथ में बढ़ाता है। सो वी हैव टू, हमें सबको पता है कि हमें क्या नहीं खाना है, तो वो सब हमें नहीं खाना है। ओके, तला हुआ, ज्यादा मसालेदार, ज्यादा सॉल्टी फूड, सॉल्ट तो मतलब बीपी के लोगों को बहुत ही मतलब मॉडरेट ही लेना है, बंद नहीं करना है लेकिन मॉडरेट लेना है। नाउ व्हाट यू कैन इंक्लूड? Okay, you can include fresh fruits, bananas, potatoes, sweet potatoes, as they contain potassium, which will help you to get rid of sodium. आपको अगर आपके शरीर से मतलब ओवर जो ब्लड प्रेशर है उसे रीड करना है, उसे आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको पोटेशियम जिसमें जिन चीजों में है उनको आपको इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ में यू कैन इंक्लूड बेरीज, ऑल द टाइप्स ऑफ strawberries, mulberries, as per season you can include, which contain flavonoids. Flavonoids एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं which are very famous for reducing high BP and heart problems. So you can include all this. You can include yogurt for as a probiotic and calcium content उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हेल्दी डाइट में जो बोला जाता है, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, नट्स है, सीड्स है, जैसे फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, लीन प्रोटीन्स लाइक दाल्स है, स्प्राउट्स है, ये सभी आप इंक्लूड कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है? पोर्शन कंट्रोल, लिमिटेड इंटेक ऑफ सोडियम एंड फैट्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, our next pillar is vihara.
विहार मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। आप अपना हमारा जो काम होता है उसे छोड़ के जो जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो हमारे विहार के कैटेगरी में आते हैं। विहार में आप दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, संयुक्त ये सभी आपको फॉलो करना है। दिनचर्या मतलब क्या? आपका जो सर्कैडियन रिदम होता है, मतलब नेचर के साथ में हम सबका शरीर बाइंडेड होता है। एक हमारा रिदम होता है, हर एक व्यक्ति का अलग रिदम होता है, लेकिन विच इज वेरी रिलेवेंट विथ नेचर। सो आपको अपने रिदम के हिसाब से, या दिनचर्या को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सूरज सूरज जैसे जल्दी उगता है, तो ड्यूरिंग डे यू कैन कंप्लीट योर फूड इनटेक। एट द टाइम ऑफ सनसेट यू शुड हैव योर डिनर। सनसेट के बाद में बहुत देर आपको डिनर नहीं करना चाहिए, एंड दिस विल हेल्प यू टू फॉलो द राइट नाइट रिजिम ऑल्सो। हाउ? नाइट रिजिम में आपको रेस्ट लेना, फुल नाइट मतलब 7 to 8 आवर्स का एटलीस्ट आपको डीप स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप 10-11 बजे आप डिनर करेंगे तो फिर आप सोएंगे कभी? आप सोएंगे 1-2 बजे तो आप उठेंगे कभी? सो अगर आप दिनचर्या अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप रात्रिचर्या भी अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। नाउ दिनचर्या में आपको हाई बीपी के केस में मेनी ऑफ द टाइम्स बीपी इज हायर इन द मॉर्निंग। हमारा जो बीपी है वो मॉर्निंग में हाई रहता है। वो भी दिनचर्या का ही सर्कैडियन रिदम जो होता है उसी का पार्ट है। बिकॉज हमारे जो एड्रेनालाइन हार्मोन्स है जो हमें वेकअप करते हैं, मतलब जो हमें उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारा ब्लड का मतलब ब्लड को स्टिमुलेट करते हैं, ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करते हैं, एंड सो बीपी भी हमारा उसी वक्त हाई होता है। सो मेनी ऑफ द टाइम्स मेडिकेशन जो होता है, डॉक्टर्स जो मेडिकेशन देते हैं वो मॉर्निंग में होता है। अगर हमें पता नहीं है कि मतलब उस हमारा किस टाइम पे हमारा बीपी बढ़ता है, सो उस हिसाब से भी ऑब्जर्वेशन के बाद आप अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या में वो जो मतलब छोटे छोटे बदल है वो आप कर सकते हो। ओके, सो दिनचर्या में मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द टाइम हाई बीपी रहता है लोगों को। और जो हम मॉर्निंग में जो हार्ट अटैक्स आते हैं या मतलब सडन हम किसी के बारे में कुछ सुनते हैं, तो ये इसी की वजह से हो सकता है। ओके, सो अगर आप रात्रिचर्या अच्छे से फॉलो करेंगे और दिनचर्या मतलब ऋतुचर्या के बाद मतलब कंटिन्यूएशन में अगर ये फॉलो करने लगोगे आप, तो आप इस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का ये जो प्रॉब्लम है उसे भी आप थोड़ा सा क्योर कर सकते हो। मतलब थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। नाउ prioritize exercise. For high BP, exercise is very very important. You should definitely plan your exercise in your दिनचर्या। आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? कार्डियो एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग। तो जब आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो आपको ओवर स्ट्रेनियस कार्डियोस नहीं करने हैं, लेकिन ऐसे कार्डियो आपको जरूर करने हैं जो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दे। You can include asana and pranayam. They will do wonders for you. Keep moving on. Another आपको ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि you have to keep moving on. Don't sit on a one place for too long because we have to increase our circulation towards our extremities. मतलब हमारे पैरों की तरफ और हमारे सर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहना चाहिए to overcome this problem of high BP. So you can prioritize your relaxation with that also. Relaxation plays very crucial role in BPK treatment में या normalizing high BP। इसमें बहुत ज्यादा मतलब रोल ये प्ले करेगा। If you are a working person, you can take breaks of 2-3 minutes or 5 minutes after every 2 or 3 hours, and you can engage with in deep breathing। आप deep breathing अच्छे से सीख लो किसी से, और आप ऑफिस टाइमिंग में या आप वर्किंग हो आपके वर्क के जगह पे आप 2 to 3 minutes 5 minutes का ब्रेक लेके डीप ब्रीदिंग करने से आपका सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, आपका मेंटल स्टेट भी अच्छा हो जाएगा। सो यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। विथ दैट डीप ब्रीदिंग इज अ मतलब वो रेमेडी ही है। एंड इफ यू आर अ होम मेकर और वर्किंग फ्रॉम होम,
सो अगर आप घर पे रहने का लग्जरी है आपके पास, सो देन यू कैन डेवलप हॉबीज लाइक गार्डनिंग, ग्रोइंग लीफी ग्रीन्स फॉर योरसेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, playing with your children. This can be also your stress busters के तरह आपके लिए ये काम करेंगे. उसके अलावा हॉबीज आप अपने डेवलप कर सकते हो लाइक सॉल्विंग सुडोकू, क्रॉसवर्ड पजल, क्योंकि ये आपको आपका जो बीपी का जो रीजन है उससे आपको ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे. सो दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू. सो नाउ अष्टांग योग भी आप सभी फॉलो कर सकते हो. इसके लिए यम नियम, यम है आपके जो सोशल वैल्यूज है, आपको सोशल लाइफ में आपको कैसे इंटरेक्ट करना है सभी से. सो इसके लिए जो बताए गए हैं वो है यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह. अहिंसा सबको पता है, सत्य सबको पता है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब डूइंग लीगल थिंग्स और यू कैन बी अ लॉयल पार्टनर विथ योर स्पाउस. अपरिग्रह मतलब होर्डिंग नहीं करना, जमाखोरी नहीं करना. हमें जमाखोरी सिर्फ चीजों या पैसों के बारे में नहीं है. हमारे केस में जिनको बीपी है, सो उनके लिए अपरिग्रह आप विचारों के लिए भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मतलब विचार जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है वो, सो उसमें हम देखेंगे विचार के लिए भी अपरिग्रह आप फॉलो कर सकते हो. सो सदवृत्त दैट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छा बिहेवियर हमेशा आपको हेल्दी एंड हैप्पी बनाएगा. इसके लिए आप अष्टांग योग का डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. नाउ आचार, दैट इज योर रूटीन, प्लान योर रूटीन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपना रूटीन हमेशा प्लान करना है. सुबह सुबह उठ के फिर घाई घाई में हरी में कुछ गलतियां हो जाती है, फिर उसका अलग से स्ट्रेस आता है. पहले ही हाई बीपी बढ़ा हुआ होता है और अनएक्सपेक्टेड थिंग से और बढ़ जाता है. सो आप अपना दिन, जितना आप होम मेकर हो, आप वर्किंग हो, आप जो भी हो, आपको दिन में कुछ नहीं करना है तो वो भी प्लान करो कि मुझे इस टाइम में कुछ नहीं करना है. दिस इज माई मी टाइम. दैट इज ऑल्सो, बट इट शुड बी प्लान एंड फॉलोड. सो आप अपने लिए कुछ मतलब आचार में रूटीन अपना अच्छे से प्लान करो. इसमें भी साधक तत्व और बाधक तत्व ये हठ योग में बताए गए हुए हैं. आपको अगर कोई गोल अचीव करना हो तो आपका रूटीन अगर आपको फॉलो करना हो, आपको कोई गोल अचीव करना हो, उस किसी चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो उसे उसमें आप उत्साह मतलब के एंथुसियाज्म, साहस यानी कि टाइप यू कैन टेक योर लाइफ एज एन एडवेंचर, धैर्य यानी कि करेज. हम सभी के लाइफ में हम जो भी हो, हमारा प्रोफेशन जो भी हो, हर्डल्स एंड डिफिकल्टीज तो आने ही है. सो करेज तो हमें मतलब चाहिए ही. तत्व ज्ञान, दैट इज रीडिंग, लिसनिंग गुड थिंग्स, गुड बुक्स, गुड थॉट्स विल हेल्प यू ऑलवेज, विल कीप यू मोटिवेटेड. निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन, हाँ एक एक चीज आपने अगर अपने लिए गोल जैसे कुछ बनाया है, सो उसे डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करो. नेक्स्ट इज जनसंग परित्याग. इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल में रहने के लिए जाना है, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल हु डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल. और विचार जिनके इंटरेस्ट आपसे कुछ अलग है, सो उनसे आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए एटलीस्ट अंटिल द टाइम यू अचीव योर गोल. नाउ बाधक तत्व जो आपको अवॉइड करने हैं, अत्याहार, दैट इज ओवर ईटिंग. हम सबको पता है ओवर ईटिंग से क्या क्या होता है. प्रयासश्च, ओवर एक्सर्शन या बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए प्रयास करना. प्रजल्प यानी कि टॉकेटिवनेस, गॉसिपिंग, वेस्टिंग टाइम इन नॉनसेंस टॉक्स. नियमाग्रह, टू मच रूल्स फॉर एवरीथिंग. जनसंग्रह, दैट इज द सेम थिंग वी डिस्कस अबव. एंड लौल्यम, दैट इज अनस्टेडीनेस. आज आज एक डाइट फॉलो किया, कल दूसरा किया, परसों जिम ही करने चले गए, उसके साथ उसके अगले दिन भागने ही चले गए, दौड़ लगाए और फिर कोई किसी का भी रिजल्ट नहीं मिला. सो ऐसा लौल्यम रखने से मतलब बजाय आप किसी एक चीज को अच्छे से प्लान करके उसी को फॉलो करिए. नेक्स्ट आवर very important fourth pillar, which is vichara, that is your thought process.
हमें एक दिन में नॉर्मल एडल्ट पर्सन को या नॉर्मल पर्सन को 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं एक दिन में. सो विचारो, our thoughts play very crucial role in our health management. If our thought process is such that it increases our stress, then it will definitely contribute to our high BP. इन मॉडर्न लाइफस्टाइल आवर माइंडसेट कैसा होता है, हम ऑल द टाइम हम स्ट्रेस में ही रहते हैं. एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, इरिटेशंस होते हैं, रेस्टलेसनेस तो रहता ही है. हम मोर एंड मोर एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, किसी सिचुएशन से. कंटिन्यूअस कंपैरिजन करते रहते हैं. लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, इसके वजह से ब्रोकन रिलेशंस होते हैं. एंड ऑल द टाइम मैनी, मतलब आजकल तो छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ मुझे स्ट्रेस हुआ है. सो एवरीवन इज फेसिंग द प्रॉब्लम स्ट्रेस. इसके साथ में क्या हो जाता है, हमारे जो फॉल्टी थिंकिंग हैबिट्स होते हैं वो आजकल इतने कॉमन हो गए हैं कि दे आर बिकम लाइक आवर ऑटो हैबिट्स. वी आर स्ट्रेस्ड इन डिफॉल्ट मोड. हम हमेशा ही डिफॉल्ट मोड में रहते हैं, उस स्ट्रेस मोड में रहते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जब तक ऐसा कोई धड़ाम से हमारे ऊपर बीपी या डायबिटीज या ऐसे कुछ आ न जाए, तब तक हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हम स्ट्रेस में हैं. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. वन कैन स्टडी योर, मतलब हम हमारे थॉट्स जो है, हमारा सेल्फ डायलॉग जो है, हमारे जो इमोशंस है उसे हम स्टडी कर सकते हैं. हर एक का कोई ना कोई ऑटो इमोशन रहता है एज पर साइकोलॉजी. जब हम कोई इतर अदर काम नहीं कर रहे होते, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे होते हैं, तो हम जिस जिस वक्त हम सेल्फ डायलॉग में होते हैं, तो हमारा एक इमोशन रहता है, वो बाकी सारे इमोशंस के मतलब से ज्यादा होता है. दैट कैन बी गिल्ट, जेलसी, हैप्पीनेस, सेल्फ पिटी, एंगर, कॉम्पिटिटिवनेस, हेल्पलेसनेस. इसमें से कुछ भी हो सकता है. इसके अलावा बहुत सारे हैं जो भी हो सकते हैं, या इसमें से 2 या 3 का मिक्सचर भी हो सकता है. सो यू हैव टू, मतलब अगर आप हाई बीपी या ऐसे कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो जो साइकोसोमेटिक है, तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. यू कैन फाइंड आउट योर ऑटो इमोशन. अगर वो निगेटिव है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है, सो योगा विल हेल्प यू टू कम टू अ न्यूट्रल इमोशन. आप जब निगेटिविटी से शुरुआत करते हो, देन यू can't डायरेक्टली जम्प टू अ पॉजिटिव इमोशन. फर्स्ट यू हैव टू कम टू न्यूट्रल इमोशन. और न्यूट्रल पर आने का जो प्रोसेस है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड योगा विल हेल्प यू फॉर दैट. सो दिस जीरो स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए योगा में से जो टेक्निक्स है, प्राणायाम, मेडिटेशन, जब ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. एंड वंस यू कम टू योर न्यूट्रल स्टेज और आपका विचार शांत हो गया, सो आप सॉर्टेड भी हो जाएंगे ज्यादा, एंड यू कैन देन राइट टूवर्ड्स पॉजिटिव. और वही आपके लिए मतलब चेंज ऑफ गेम होगा, वही आपके लिए शायद यू टर्न होगा. सो गुड पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स आप इनकलकेट कर सकते हो विद प्रैक्टिस और स्वाध्याय. अभी योगा क्या है, मतलब पतंजलि ने योगा का डेफिनेशन क्या किया है. योग चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब कंट्रोलिंग एंड बैलेंसिंग द वृत्ति दैट इज चेंजेस इन योर माइंड इज अ योगा. सो पतंजलि ने हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब इस पर बहुत ज्यादा अनुसंधान करके रखा है. चित्त प्रसादन विधि वन ऑफ द रेमेडीज आप उसे बोल सकते हो. चित्त प्रसादनम, दैट इज ब्लिसफुल एंड पीसफुल चित्त. यू कैन कॉल इट एज अ एंशिएंट CBT, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. यू कैन से इट लाइक दैट. इसमें क्या बोला है, चित्त प्रसादन एक्सप्लेन्स हाउ वी कैन इनकलकेट मैत्री. आपको यहाँ पे 4 एटीट्यूड्स आपको बदलने के लिए, या आपके 4 एटीट्यूड्स रहने चाहिए टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू. फर्स्ट इज मैत्री. That is, you have to be very friendly with happy people who are more happy or more successful than you. मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे कॉमन लोग जो होते हैं,
वो हमारे हमसे कोई हैप्पी है या सक्सेसफुल है तो उनके साथ में जेलसी ये हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहता है. सो यू हैव टू अवॉइड टू बी जेलस. यू कैन जॉइन देम विथ दिस हैप्पी पीपल. आप फ्रेंडशिप करिए. नेक्स्ट इज करुणा. दैट इज कंपैशन, नॉट पिटी, टूवर्ड्स दोज हु आर अनहैप्पी और आर इन सम प्रॉब्लम. उनको दया नहीं दिखाना है, बट आपको उनसे कंपैशन रखना है. अगर आप कर सकते हो तो हेल्प करिए. नेक्स्ट इज मुदित. मुदित, बी जॉयफुल टूवर्ड्स दोज हु आर डूइंग पुण्य, और कुछ गुड और अच्छे वर्चुअस डीड जो कर रहे हैं, थिंग्स कर रहे हैं अपने अपने लाइफ में. सो यू कैन जॉइन देम एंड बी जॉयफुल विद देम, बी मुदित विद देम. Fourth is upeksha, that is indifference towards those who are indulging in apunya. जो bad किसी sins में जा रहे हो, किसी behavior उनका अच्छा नहीं है, so be indifferent with them. Other techniques which are given in चित्त प्रसादन विधि, the वो जो 5-6 टेक्निक्स यहाँ पे स्लाइड में जो आपको दिख रहे हैं, दे कैन इमीडिएटली और दे कैन बहुत ही उसी इंस्टेंटली, आप जिसे बोल सकते हो, वो इंस्टेंटली आपका स्ट्रेस और आपका बीपी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो कम कर सकते हैं. दिस कैन बी, one is deep and forceful exhalation and controlled inhalation, binding a state of mind to experience. थर्ड इज विजन ऑफ ज्योति. यहाँ पे ज्योति आप फिजिकल ज्योति यानी कि फ्लेम भी ले सकते हो, या तो ये आपके मन का प्रकाश, मतलब आपका जो ज्ञान है आपके अंदर का, वो है. अटैचमेंटलेस माइंड, थोड़ा सा डिटैच होना सभी चीजों से, योगा हमें यही सिखाता है. गिविंग माइंड सपोर्ट टू सपोर्ट ऑफ नॉलेज, दैट इज साक्षी भाव. अब ये साक्षी भाव क्या है? हम सबको पता है, हम सब में ये साक्षी भाव होता है. जब हमें कहीं ट्रैवलिंग करना हो और हमें सुबह जल्दी उठना हो तो हम 4 बजे का अलार्म लगाते हैं या 3:30 बजे का अलार्म लगाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम उससे पहले ही 5-10 मिनट वेकअप हो जाते हैं. सो हमें कौन उठाता है? ये साक्षी भाव जो है, या हमारा जो इंट्यूशन है, या आप उसे बोल सकते हो आपका जो हायर सेल्फ है, वही आपको जगा देता है बिफोर द टाइम, बिफोर अलार्म रक्स. सो ये साक्षी भाव जो है, इसके आजकल के हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ में या बिजी लाइफ में हम इस साक्षी भाव की सुनना छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं कि हमारे सभी में ये साक्षी भाव होता है. सो यू कैन मतलब साक्षी भाव की सुनना शुरू करो, उससे भी थोड़ा सा मैत्री कर लो. सो दैट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम और एनी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम. हमें अंदर से बहुत सारी चीजें पता होती है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं. नाउ विचार इज वेरी इंपॉर्टेंट. योगा इज बेसिकली अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस. आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप इसका इम्पोर्टेंस या इसका पावर आप जान सकोगे. योगा शास्त्र कंसिस्ट ऑफ मेनी टेक्निक्स, मेनी रेमेडीज, मेनी मोर थॉट प्रोसेसेस एंड एनालिसिस डन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स. मतलब आज से हजारों साल पहले ये सारे रेमेडीज निकाले जा चुके हैं. मे बी तभी भी स्ट्रेस होते थे, शायद आज के जैसे रीजन से नहीं होते थे, लेकिन स्ट्रेस तो तभी भी होते होंगे शायद, इसीलिए वो ये रेमेडीज निकाल पाए हैं. सो द कंसेप्ट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स या डिसीजेस इन मॉडर्न मेडिसिन, वो अभी अभी आया है, अभी अभी हमने सुना है, और अभी अभी उसे मॉडर्न मेडिसिन में माना गया है कि साइकोसोमैटिक डिसीजेस करके भी कुछ है. लेकिन this beautiful concept is already explained in the epic of Yoga Vasishtha. You can say it as a Vasishtha Ramayana also. Epic of Ramayana में इसे already explain किया जा चुका है. ये स्टोरी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी. श्री राम जब वो प्रिंस थे, जब वो यंग थे, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम होने से पहले, रामा आस्क्स टू महर्षि वशिष्ठ. उन्हें बहुत सारे सवाल उन्हें घेरे हुए थे, उनको डिस्टर्ब कर रहे थे. उसमें से ये एक था कि हाउ द बॉडी कैन बी क्योर्ड इफ इट बिकम इल
due to mind and how it should be cured. Vasishta's reply was, when mind is disrupted, the body also get disturbed. When the body get disturbed, the balance of respiration is lost and functioning of prana, the vital energy, becomes irregular. The energy channels are almost clogged. Food is not digested. All these disturbances give rise to diseases. That is the concept of Adi and Vyadhi. Yoga Vasishta then elaborates the mechanism by which these psychosomatic disorders occur. Mental confusion leads to agitation of prana. You can see here. आदि मतलब आपके मेंटल एजिटेशंस, इसके वजह से आपका प्राण जो है, आपका जो एनर्जी फ्लो है उसे डिस्टर्ब करते हैं, which in turn unstable nadis. Mental confusion leads to clogging the flow of your nadis. Here you can see, and that will deplete your energy. This leads to disturbances in physical body, like the disturbances in metabolism, excessive appetite, improper functioning of entire digestive system, which you can see here, ajirnatvam, atijirnatvam, and pujirnatvam. And these will lead to physical ailments, which are vyadhi. So, yoga is a remedy for all these psychosomatic diseases, which are occurred due to first adi, that is a आपका जो थॉट प्रोसेस है या आपके मेंटल एजिटेशन से, उसके वजह से जो मतलब आपके डिसऑर्डर्स, व्याधि जो आपके शुरू हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? हाई बीपी तो डेफिनेटली है. समटाइम्स हाई बीपी ऑल्सो, मतलब एक इसमें अनाधि जो व्याधि करके एक है, जिसमें कोई केसेस में हाई बीपी किसी एक्सीडेंट की वजह से या ऐसे भी हो सकता है. वो ऑफ कोर्स वो थोड़े ही दिनों के लिए होगा, लेकिन वो वैसे कंडीशन में जो आदि के वजह से नहीं आए वो भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज आर आदि, एंड उसके वजह से ही ये साइकोसोमैटिक डिसीजेस होते हैं. ये सारे कौन कौन से हैं? हाई बीपी, डायबिटीज, बैक पेन, नी पेन, पीसीओडी, पीसीओएस एंड मेनी मोर. इसमें अनादि जो मतलब आदि के बिकॉज नहीं होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? वायरल इन्फेक्शंस आदि के वजह से नहीं होते हैं, एक्सीडेंट्स आदि के वजह से नहीं होते हैं. बाकी सारे मोस्ट ऑफ देम जो है वो आदि की वजह से ही होते हैं. सो व्हाट योगा विल डू फॉर दैट? हाउ कैन योगा हेल्प? सो व्हाट इज योगा? बेसिकली इज आपका चित्त योग, चित्त वृत्ति निरोधः, वही योगा का बेसिक डेफिनेशन है. सो योगा विल ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी टू रिस्पॉन्ड बेटर इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन. आपके आसन, प्राणायाम, ये जो सारे अष्टांग है, इनको फॉलो करने के बाद में यू आर ट्रेनिंग योर माइंड एंड बॉडी टू बिहेव बेटर, टू अचीव बेस्ट when you are in stress or you are in some problematic condition. जहां से आपका ये आदि स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले ही आप उसे टैकल करना सीख लोगे. जब आप योगा का प्रैक्टिस करते रहोगे, दिस 1 hour प्रैक्टिस जो आप मैट पे करते हो, क्लास में करते हो, that will reflect in your 23 hours and that will be the yoga. योगा का मतलब 1 घंटा कुछ हाथ पैर इधर उधर कर लिए, कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट कर लिए, that is not the only yoga. Okay, so now what yoga brings for you? For hypertension, हम ये सारे प्रैक्टिसेस करने वाले हैं. हमारे जो बाकी के 4 दिन है, जिसमें प्रैक्टिकल सेशंस हो गए, उसमें प्रेयर, शटक्रिया, सूक्ष्म व्यायाम, आसना, प्राणायाम, मुद्रा एंड मेडिटेशन, ये सभी हम फॉलो करने वाले हैं, सभी करने वाले हैं. योगा प्रैक्टिसेस अभी इनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं. प्रेयर, व्हाई वन डू प्रेयर? प्रेयर बहुत लोग मतलब ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें प्रेयर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन प्रेयर को आप ऐसे देख सकते हैं कि स्क्वीजिंग योर स्पंज. अगर आपने अपने में से
पानी नहीं निकाला तो आप आगे का आने वाला पानी आप कैसे एब्सॉर्ब करोगे? सो यू कैन स्क्वीज योरसेल्फ, आपके अंदर से इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल दो, और जो नया ज्ञान या नया कुछ आप करने जा रहे हो उसे अच्छे से एब्सॉर्ब करो. सो यू कैन आस्क, यू कैन डिजायर, यू कैन रिक्वेस्ट टू गॉड फ्रॉम प्रेयर, विथ प्रेयर. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है. आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. यू विल लर्न टू सरेंडर, दैट इज स्क्वीजिंग. यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट. ओके, प्रेयर हम करने वाले हैं. हमारा ऑलवेज क्लास जो होता है वो प्रेयर के साथ ही शुरू होता है. योगा प्रैक्टिसेस, फॉर अदर योगा प्रैक्टिसेस में षट्क्रिया है. षट्क्रियाज आर help you to balance your tridosha, that is kapha, pitta and vata. इसमें 6 प्रैक्टिसेस बताए गए हैं: धोती, बस्ती, नेति, नौली, कपालभाति एंड त्राटक. इसमें से त्राटक हम अपने 4 दिन में 1 दिन करने वाले हैं. सो त्राटक से आपको मस्कुलर टेंशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इस सब से आप छुटकारा पा सकते हो. इट विल इम्प्रूव योर मेमोरी, कंसंट्रेशन. और आपको अगर ग्लूकोमा या रेड आइज है तो आपको वो अवॉइड करना है. बाकी के योगा प्रैक्टिस में सूक्ष्म व्यायाम. सूक्ष्म व्यायाम, उसका नाम सूक्ष्म है क्योंकि, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. एक तो ये कोई भी कर सकता है. आपका बीपी अगर बढ़ा हुआ भी है तो उस वक्त भी आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो. बेड रिडन लोग जो होते हैं वो भी इसमें से कोई कोई मूवमेंट जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं. हमारे केस में बीपी जो होता है वो पूरे शरीर में ही उसका मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम में होता है. सो हमारे लिए सारे माइक्रो पार्ट्स को, सारे माइक्रो ऑर्गन्स को रिलैक्स करना, स्ट्रेच करना, वार्म अप करना, थोड़ा सा खोलना, उसे ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाना, ये सब के लिए सूक्ष्म व्यायाम हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं. नेक्स्ट इज आसनास. ये सारे सूक्ष्म व्यायाम हम करने वाले हैं. कंट्रोलिंग हाई बीपी में नेक्स्ट आर आसनास. यहाँ पे ऐसे सारे आसनास हम करेंगे. आसना को आप बलोपासना, यानी कि आपको स्ट्रेंथ के लिए, आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपको कंपोजनेस मोड लाने के लिए. एंड आसना विल डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम योर माइंडसेट. अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ भी है तो आपको उस सिचुएशन से डाइवर्ट करने में थोड़ा सा कनेक्शन आपका बाकी चीजों से लगाते हुए आप आसना करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. हम ये सारे आसना ट्राई करने वाले हैं करने के लिए. नेक्स्ट इज प्राणायाम. इसमें अभी प्राणायाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्. यानी कि जब हमारा ब्रीदिंग चलता है या मन चलता है तो ब्रीदिंग भी चलता है. बीपी के केस में हमारे प्राण को या हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप डिस्टर्ब होते हो तो आप मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो आपका ब्रीदिंग भी चेंज हो जाता है. अगर आप हैप्पी हो तो जिस पैटर्न का ब्रीदिंग ब्रीद आउट जैसे आपका होता है वो बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल हो जाता है जब आप स्ट्रेस में होते हो. सो you can control pranayama, you can learn good pranayamas, which will help you in the stressful conditions. So pranayama is a very good practice. हम ये सारे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, क्लैविकल ब्रीदिंग, चंद्रभेदन, ये सभी हम करने वाले हैं 4 दिनों में. नेक्स्ट योगा प्रैक्टिस इज मुद्रा. Mudras are mostly used in meditations, pranayam, और and they can मतलब अलग से भी किए जा सकते हैं. They are hand gestures और body gestures which will आपका जो certain state of mind है, consciousness है, उसकी power ही बढ़ाएगा, उसको more ज्यादा concentrated या you can basically आपके flow of energy है उसे आप direct कर सकते हो इन मुद्राज और मुद्रा को फॉलो करके. नेक्स्ट इज ये सारे जो मुद्रा है इसमें से 3-4 मुद्रा हम डेफिनेटली करने वाले हैं. योगा प्रैक्टिसेस फॉर कंट्रोलिंग हाई बीपी में
आगे है रिलैक्सेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर केस। ओके, बीपी के केस में हमारा जो प्रेशर रहता है वो इंस्टेंटली रिड्यूस करने का या स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए रिलैक्सेशन या गाइडेड शवासना है, योग निद्रा है, बहुत सारे मेडिटेशंस के मतलब वो टाइप्स है, वो सभी बहुत अच्छे हैं। व्हाट इट आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं? यू कैन नॉर्मलाइज योर बीपी, improve use of oxygen, that thing is also very important for us, reduces production of stress hormones like cortisol, हार्ट रेट आपका नॉर्मल हो जाएगा, ब्रीदिंग, एजिंग, ये सभी आपका स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी एंड योर कॉन्सेंट्रेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस है मंत्र योग, ओंकार साधना या जप साधना, जप योग, जिसमें हम ओंकार साधना करने वाले हैं, एक दिन में जरूर करेंगे। व्हाट इसके बेनिफिट, ये आपको लगेगा कि ऐसे मंत्र या ओम बोल के क्या 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 हो सकता है। सो इट विल फर्स्टली प्यूरिफाई योर एनवायरनमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड। फर्स्ट और मोर मतलब मोस्ट इसका इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, इट विल रेगुलेट योर हार्ट बीट एंड रिदम, it will relax your body and mind, improve your concentration, immunity, self healing, ये बाकी सब इसके जो जो बेनिफिट्स है वो आप मतलब इसका आपको बहुत ही इजी प्रैक्टिस है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अगर आपका बीपी उस टाइम बढ़ा हुआ भी हो तभी भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो these are all practices we are doing from tomorrow। अभी कल से हमें क्या क्या आप एक तो जो वर्कआउट्स करने वाले हो या जो प्रैक्टिकल सेशन में भाग लेने वाले हैं वो सभी थोड़े से प्रिकॉशंस एक बार सुन लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। आपको कल आप अगर मतलब वर्कआउट करने वाले हो या आसन प्रैक्टिसेस या ये सब करने वाले हो तो आपको नॉर्मल क्लोथ्स पहनने हैं, लूज क्लोथ्स पहनने हैं, कॉटन प्रेफरेबली। उसके बाद में आपको मैट अपना हैंडी रखना है। उसके साथ में बोलूंगी एक आप दुपट्टा या ऐसा भी कुछ रखो जो आपके बैक को सपोर्ट करने में, अगर बैक को हर्ट होता है, क्योंकि जब बीपी बढ़ा हुआ होता है तो आपका बैक बहुत इजीली हर्ट हो जाता है। सो उस केस के लिए आप थोड़ा सा एक दुपट्टा अपने साथ में रखिए। उसके बाद आपको 2 आवर्स पहले तक आपका जो भी ईटिंग है वो आप कंप्लीट कर दो, मतलब एम्प्टी आपका स्टमक होना चाहिए। यू आर मतलब क्या बोलूं मैं, यूरिन आप अच्छे से पास करके आ जाइए, क्योंकि ब्लैडर फुल होना ये अच्छी बात नहीं है ड्यूरिंग योर आसना प्रैक्टिसेस, प्राणायाम प्रैक्टिसेस। सो टेक दैट प्रिकॉशन। उसके अलावा उसके बजाय आप थोड़ा सा रिलैक्स एटीट्यूड रखिए। हम ये जो प्रैक्टिसेस है ये किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए या मुझे ये करना ही है ऐसा करके नहीं, हम सीखने वाले हैं। सो बी लिटिल पेशेंट, किसी से compete मत करिए, अपना अपने आप से यथाशक्ति जितना आपसे होगा उतना ही करिए। सो फॉलो दैट। और इसके बाद में आपको हाफ एन आवर तक आपको ना ही आपको मतलब बात भी लेना नहीं है और आपको ईटिंग भी नहीं करना है। सो ये सारे प्रिकॉशंस आप ले सकते हो बिफोर डूइंग योगा। सो अगर आपको कोई शंका है, आपको कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी। जी ये शेयरिंग स्टॉप कीजिए ना। तो फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे। आप मैट लेके आइएगा, मतलब मैट पर ही बैठिएगा, और कोई आपको पूछना है पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट्स का टाइम है हमारे Everybody पास। प्लीज सबमिट द फीडबैक फॉर्म्स, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज सबमिट इट। Yes, I will also request you to submit the feedback form for today's session. मैडम एक क्वेरी था आज। हाँ।
What is the recommended practice for a senior citizen who is having high BP? मतलब senior रिकमेंडेड citizen. क्या? और रिकमेंड मतलब क्या रिकमेंड आप करोगे सीनियर सिटीजन के लिए जिनको हाई बीपी है? बिकॉज उन लोग को आसन करना मुश्किल हो जाता है, तो व्हाट इज द बेस्ट प्राणायाम और मेडिटेशन वी कैन सजेस्ट देम? सूक्ष्म व्यायाम में भी आप बहुत सारे ऐसे हैं कि वो आप कर सकते हैं। इसके साथ में आप प्राणायाम के प्रैक्टिसेस जो है अनुलोम विलोम जैसे है, बहुत सारे हैं, भ्रामरी है या उज्जाई प्राणायाम है, ये सभी आप उनको मतलब सीखा अच्छे से। मतलब मैं यही आपको प्रिकॉशन लेना बोलूंगी कि आप अच्छा से सीख लो, गलत मत करो कुछ भी। ओके, इसके साथ में ओंकार साधना आप कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस या शवासन या योग निद्रा जिसे बोलते हैं, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। कितने भी सीनियर सिटीजन्स हो, अब एकदम बेड रिडन भी होगे ना तो भी ये फॉलो कर सकते हैं। जाप तो कोई भी कर सकता है, मंत्र जाप या ये सब। सिर्फ आसना ही नहीं है ना, बहुत सारे हैं, सो यू कैन डू एनी ऑफ देम। Nice session, Geeta ji. Very nice, very informative. Thank you. मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी ही किया शायद, फास्ट। No, no, it was correct. It was good. ओके, चलो देन आज हम ओंकार ही कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है। लेट्स स्टार्ट विद ओंकार Nice साधना। session, Geeta ji. यस, थैंक यू। Excellent presentation, Geeta ji. यस, थैंक यू सर। चलो, हम आज हमारे पास टाइम है तो हम ओंकार साधना करेंगे। 5 टाइम्स ओंकार करेंगे, ओके, एंड देन उसके बाद में शांति पाठ कर लेंगे। सो 5 टाइम्स ओंकार के लिए आप ज्ञान मुद्रा ले सकते हो, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को ज्वाइन करिए, लेकिन जस्ट टच करना है, दबाना नहीं है। ओके, आप अगर जस्ट टच करेंगे ना तो आप ये यहाँ पे नर्व फील कर सकेंगे। आपको उतना ही मतलब धीरे से दबाना है फिंगर्स को। टेक योर ज्ञान मुद्रा, कीप द फिंगर्स, कीप योर हैंड ऑन योर knees, remove your specs, back straight, chest relax, shoulder little roll back, eyes closed, concentrate on your eyebrow center. You can visualize picture of ओंकार। हम आज वाचिक ओंकार करेंगे लाउडली। इनहेलेशन के बाद में जब आप एक्सहेल करोगे तभी आपको ओंकार चैंट करना है। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, last one, inhale ओ, now shanti part। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।
ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की, अमरत्व की ओर ले चले। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, make them warm. Cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Have a nice day. कल मिलते हैं मैट पे। Thank you everyone for joining. Thank you, ma'am. Yes, गीता जी, yes. Can I end the session?